हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेट का एग्ज़ाम हमारे सर पे है और हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड है इन्वायरमेंटल जियोसाइंस के ऊपर, ठीक है। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेट ऑफ प्रोसेसेस बाय विच सॉइल एंड रॉक आर लूजन एंड मूव डाउन हिल आर कॉल्ड, ठीक है, इरोजन, सॉल्टेशन, वेदरिंग एंड एब्रेशन। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉइल एंड रॉक लूज़ होके डाउन हिल की तरफ मूव करते हैं, इसको बोलते हैं इरोजन। क्योंकि इरोजन हमारा सिंपली क्या कर रहा है, उसको लूज़ करके डाउन हिल की तरफ मूव कर रहा है। कैसे? वो किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से हो सकता है, विंड की हेल्प से हो सकता है, आइस की हेल्प से हो सकता है, या ग्रेविटी की हेल्प से हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इरोजन। Next question is windmills are most suited for deserts, offshore, high altitude and rooftop. ठीक, तो जो विंड मिल्स है वो पर्टिकुलरली जो मोस्ट सूटेड होती है वो होती है डेजर्ट्स के लिए एज वेल एज ऑफशोर्स के लिए। ठीक है, जो ऑफशोर लोकेशंस होती हैं ऑल्सो रेफर्स दे ऑफर कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग. Simply, they offer consistent and strong winds with minimal obstruction. You can say minimal obstructions. So that is why they are more suitable for the windmills. So the correct answer for this will be A and B. That is option number A, which will include A and B option both. Next question is, which one of the following elements contributes maximum to the earth crust by weight? Iron, silicon, oxygen and carbon. इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अर्थ के क्रस्ट में वेट के अकॉर्डिंग? ठीक, तो जो ऑक्सीजन है ये हमारा इट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय वेट, ठीक है, जो कि हमारा लगभग 46% कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, so the correct answer will be option number C, that is your oxygen. Next question is, a rock body or formation which may be porous enough to hold enough quantity of its other property does not allow or easy or quick flow through it is called aquirad, aquiflush, aquiclude and aquifer. ठीक, तो correct answer for this will be this is aquiclude. An aquiclude is a geological formation with very low permeability, okay, that stores water but restricts its flow. Okay, it often compasses the मटीरियल लाइक क्ले और सेल्स। ठीक है, ये एक तरीके से एक बैरियर का काम करता है ग्राउंड वाटर मूवमेंट में। ठीक, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are given with assertion and reason, and the assertion is, it is generally agreed that the life on the earth began between 3.5 to 4.5 billion years ago. The first form of the life was anaerobic bacteria, and as environment was devoid of oxygen, we have to find out the correct answer. As we know that the statement, that is the assertion, is true, क्योंकि हम जनरली बिलीव कर इट इज़ बिलीव दैट कि लाइफ जो थी अर्थ पे दैट हैव बिगन बिटवीन 3.5 to 4.5 billion years ago. That is true statement. Okay, now let's check the second statement, that is the first form of the life was the anaerobic bacteria. This is also true. ठीक, ये भी हमारा ट्रू है। ठीक, क्योंकि उस समय जो इन्वायरमेंट था दैट वाज ऑक्सीजन पुअर। ठीक, सो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइफ थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. सो करेक्ट, both the statement are correct, but this does not provides the suitable explanation for A. So you can say both A and B are the, yani assertion and reasons are correct, but reason is not the correct explanation of A, because ये explain नहीं कर रहा है कि इसकी वजह से ये हुआ है, इसलिए option B will be your correct answer. Next question is, peat soil which have undergone prolonged drought in the forest are prone for ground forest fire के लिए, underground forest fire के लिए, tree ground fires के लिए, and none of the above के लिए. एक्चुअल में जो पीट सेल अगर वो बहुत हाई पीट सेल अगर हमारे पास
इफ इट हैज़ अंडरगॉन प्रोलॉन्ग ड्रॉट, ठीक है, ये इट कैन बिकम हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, जिससे कि मेकिंग ट्री मोर ससेप्टेबल फॉर द ग्राउंड फायर, ठीक। सो ठीक है, और इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है किसमें, ट्री कैनपीज में। तो जो पीच सॉइल है अगर वो बहुत टाइम तक एक ड्रॉट से गो थ्रू करती है फॉरेस्ट में, तो इट विल कॉज, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्री ग्राउंड फायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज elongated depression with steep walls formed by the downward displacement of a block of earth surface between nearly parallel faults and fault system. This is called thrust fault, horse, graben and rift valleys. So the correct answer for this one is the option number D. Actually ये जो rift valley होती है, it is a type of large elongated depression with steep walls formed with the downward displacement of blocks of earth surface between nearby and parallel faults or a faulty system, ठीक। तो रिफ्ट वैलीज आर टिपिकली फाउंड इन अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ हमारे पास क्या है, जो अर्थ की क्रस्ट है इज बीइंग पुल्ड अपार्ट कॉजिंग द सबसिडेंस and forming a deep valley. So the correct answer for this will be option number D. Next question is an aquifer of sands has saturated column of a क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दे रखा है, डेप्थ दे रखी है, ठीक है। स्पेसिफिक्स जो yield है, सैंड yield है, दिस इज ऑल्सो गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्वाफर। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दे रखा है 0.2 इंटू 5, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ लेट्स हमको दे रखी है डेप्थ ऑफ द दिस एक्वाफर दैट इज 3 मीटर, ठीक है। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारे पास ये जो सैचुरेटेड कॉलम है उसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, ठीक है, इस एक्वाफर का, तो वॉल्यूम विल बी हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 दैट इज 3 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। नाउ what we also has given as the specific yield of sand दे रखी है 25%, ठीक है। तो अगर हमको एक्सट्रैक्टिव वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, जितना हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो सिस्टम की जो स्पेसिफिक यील्ड है दैट इज़ 25%, ठीक है, ठीक, इनटू मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा वॉल्यूम निकला था, और वॉल्यूम हमारा निकला था कितना, 3, ठीक है। तो इट विल बी 75 बाई, ये 25% था, तो इट विल बी बाई 100 एंड इट विल कम आउट एज 0.75 मीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is the El Nino and La Nina phenomena decreases water temperature in the eastern Pacific Ocean, increases water temperature in the Gulf of Mexico, occur in the definite pattern every 10 years, cause changes in the global temperature and precipitation. As we know that the both are the effects related to the associated to the where हमारे पास क्या है, एक सी का टेम्परेचर और उसका सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशन आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि इट इज़ ये हमारा हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न में आते हैं, नहीं, ठीक, क्योंकि जो हमारा एल नीनो है, दे इवेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वार्मर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेम रीजन, ठीक। तो ये हमारे जो, और ला नीना हमारा है वो किससे एसोसिएटेड है, विथ कूलर टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी गलत हो गए। तो हमारे ये दोनों फिनोमिना हमारे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे कॉज चेंजेस इन द ग्लोबल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर इज नोन एज, ठीक है। तो जो हमारा सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर्स है,
ठीक है, उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं एस्कर्स। ठीक, क्योंकि एस्कर्स हमारे क्या हैं, दे आर लॉन्ग विंडिंग रिज ऑफ सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय द मेल्ट वाटर स्ट्रीम से दैट हैज़ फ्लोड इन द टनल विद इन और बीनीथ। ठीक है, या तो किसी ग्लेशियर के साथ या उसके अंडर में जो हमारा एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक, तो वो सेडिमेंट का डिपोजिशन हमारा क्या कहलाता है, एस्कर्स कहलाता है। तो दे फॉर्म एज अ ग्लेशियर रिट्रीट एंड द सेडिमेंट्स कैरीड बाय द वाटर, मेल्ट वाटर आर डिपोजिटेड इन द रिज। सो इसको हम कहेंगे एस्कर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।